synonymous with Vedic Sanatana Dharma. So then we have so many problems. We can't do this, we can't do that. And Dr. Swami said, go home and sleep. What did he say? Go home and sleep. There's a powerful message in this. You cannot cry about things going wrong unless, as Rahul said, unless you participate actively into solving this problem. If you are not a part of the solution, you remain part of the problem. Very, very clear. So therefore, to tackle this issue, politically, socially, culturally, this organization is started called as IA Vedic, and some of our volunteers are here. They will help you to register for this. And IA Vedic has an agenda. Various agendas, but I am going to speak only one agenda. And that is, we want to make every follower of Vedic Sanatana Dharma or Hindu Dharma or an Indian, Virat Hindutva, as Dr. Swami says. Anyone who says that, okay, I am born in India, I have Indian values. That kind of Hindu, we want all Hindus to be UPSC graduates. Is it easy or difficult? It's quite difficult. You can't be UPSC graduates to know everything, law, how the administration goes. But our UPSC is very simple. We want only 4 things, UPSC. U is first a united Hindu. We want a united Hindu. What is happening is, of course, when I say this, many people have warned me, this will never happen. But, and I am also aware of the challenge, but it is beyond now all these kind of questions. It's a need of the hour. It's a need of the hour to be united on that front. So we need to be united. P stands for proud Hindu. Yes, be proud. When I say Hindu, immediately I have to, sometimes I feel apologetic about it. I am a Hindu. People start questioning you. Because you are a Hindu, that means you are anti-Muslim, anti-Christian. It is not true. Being a proud Hindu does not have any challenging effect on a proud Muslim or a proud Christian or a proud Parsi or a Jain. We need to be proud of our own religious faith. There is nothing wrong with it. So why it is wrong for a Hindu? Why can't a Hindu be a proud Hindu? Another thing is a practicing Hindu. Believe me, whomever I speak to, 95% of Hindus are non-practicing Hindus. They don't practice Hinduism. Muslims, we have gentlemen sitting here. Wonderful facility. 5 times in a day they pray together. It's amazing. We have to learn from this. Christians, at least once in a week they will go to the church. But Hindus, they go only for festivals, that too. Suppose they go for Navratri, first they make sure that the puja is over, and then they go for our nonsense. And we still call ourselves Hindus. It's very shameful effect on us. Very, very shameful. So we should be practicing Hindus. And another thing is, we need to be politically active Hindus. Because we are not politically active, therefore people are taking advantage of us. And S stands for a sensitive Hindu. We have to be sensitive. When we are Hindus, we have to be sensitive to other religions and sensitive within our religion, within our faith. We can't allow what is going on in the name of casteism that has been thrown, because nowhere in the Vedic context caste was there. Anytime in Bhagavad Gita, Krishna says, Chaturvarna Maya system, Guna Karma Vibhakasha. It is very clear. It is based on Guna and Karma. What is your activity and what are your qualities? That will decide your Varna. Not by birth. A doctor's son cannot become a doctor by birth. A lawyer's son cannot become a lawyer by birth. How can you say this caste is created by birth? This is total nonsense. When Krishna says, I have created it, that means no one can destroy what God creates. So it is still existing, but in a perverted form. And C is a contributing Hindu.
That means we need to contribute to this faith. We need to contribute to this nation. We cannot go home and sleep. And that is the reason why this whole effort of IE Vedic has begun. And as politically active this time, IE Vedic, it's a small organization to begin with. Right now it's at 4 units. Presently we are just handling one taluka, about 60 villages in Maharashtra, Thane district, just so that our own people are uplifted socially, culturally, educationally, health-wise, so that they don't feel the need to go anywhere else, to succumb to political trickery. And that is the reason why IE is doing all these things. And for this term, they are very strongly behind Dr. Swami and Narendra Modi. They have decided that whatever little bit they can do, their support is two great personalities who have come together, and we hope to see a big change in India. Thank you very much. Very shortly, we will be inviting Dr. Swami to speak. I request our volunteers that lot of new friends are coming to please ensure that we have chairs put out for them. I would now, before Dr. Swami speaks, Dr. Swami speaks, we have another visitor, the local MLA from Mulund, Sardar Tara Singh is here. We welcome him. As you all know, Sardar Tara Singh has been a MLA from Mulund and he has already served more than 3 terms. Harshad Bhai Desai will make some announcements, then we will have Sardar Tara Singh speak, and then we will be Dr. Swami speaking. कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी का हमने हार्दिक स्वागत किया है। उसी के साथ हमारे संघ परिवार के श्री मधुकरराव कुलकर्णी जी, देवीदास शर्मा, दीपक सचदेव, तुषार शर्मा, भानुशाली समाज के कांतिभाई कटारिया, लोहाना समाज के रजनीकांत भाई कारिया, परेश भाई ठक्कर, काटियावाड़ी समाज के श्री विनोभाई मोदी यहाँ आए हैं। ये सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत से कार्यक्रम आज लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने कल मुझे बुला के कहा रजिस्ट्रिंग ऑफिस की मीटिंग के बाद कि अर्शद भाई कितना बजे आना है। मैं बोला आप 11:30 से 12 के बीच में जरूर आ जाइए। तो बोला नहीं, मैं 12 बजने नहीं दूंगा, मैं सरदार है तो भी। और ऐसे कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी का स्वागत श्री कुलकर्णी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की कार्यवाही जल्दी से भी करें। I would request Sardar Tara Singh to address us. मंच पर विराजमान
सबके प्यारे, सबके नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी और सम्मानीय बड़े दिनों के बाद मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। आज का तो मैं करता रहता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी जी का। मैं बहुत समय पहले आज भी सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक कार्यकर्ता हूँ और इस कार्यकर्ता के नाते 15 साल से मैंने मुल्क की जनता की सेवा की। 15 साल और 18 साल जहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी आमदार थे वहाँ 18 साल नगर से मुल्क से रहा हूँ, भाजपा से रहा हूँ। लगभग 33 साल बगैर हारे भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से आज भी मैं जीत कर आता हूँ। और जब भी जीत कर आता हूँ तो कम से कम 30,000 वोट कांग्रेस वालों से ज्यादा देता हूँ। आज खुशी इस बात की है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत कम समय स्वामी जी हमारे मुल्क में आते हैं तो नागपुर से आगे भाग जाते हैं। तो मेरा इसी निवेदन है कि जितना प्यार हम आपको करते हैं इतना प्यार शायद पूरे इंडिया में कोई आपको करता नहीं। इसलिए आप जो आज बता के जाएंगे, यहाँ पर सब लोग बैठे, नौजवान बैठे और इस भारत देश की रक्षा करने का सारा मुद्दा उनके ऊपर है। और आपकी बात सुनकर मैं इतना जानता हूँ, ऐसे भी वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए, और आपके कहने से हर एक घर से 10-10 वोट और ज्यादा पड़ेंगे। और जब 10-10 वोट पड़ेगी तो आपसे ये याद रखना है कि स्वामी जी ने कहा इससे वोट डाले, मगर ये गलती नहीं करना कि वो पेपर मिलेगा उसके स्वामी जी लिखे ऐसा नहीं। उसके लिए एक सुबह जाए उसका लाभ दिखता है, कमल को देखना है, कमल के निशान में कपड़ा मारना है। और मैं अभी नहीं बोलती हूँ, मैं लेट आया, स्वामी जी से माफी मांगता हूँ। मैं कम से कम 6 प्रोग्राम करके आया हूँ, अलग अलग जगहों में 3 रोडों का उद्घाटन करके आया, किसी की इज्जत हो गई थी वहां करके आया, दूसरे 2 प्रोग्राम करके अभी आया हूँ। और मैं आधा घंटा यहाँ बैठूंगा, उसके बाद मुझे शाहपुर तक जाना है। शाहपुर मालूम है कहाँ पे? बहुत दूर है बाबा, बेकलाकार जाओ ना। और अभी मुझे 5 बजे धर्मेश जी पत्नी ने छोड़ ले गया जयमान वाले थे, तो बड़े बहुत से कार्यक्रम है मेरे पास। मैं अधिक समय नहीं बैठूंगा, स्वामी जी से माफी मांगने जाऊंगा, परंतु इतना आपको बोल के जाता हूँ कि स्वामी जी का भाषण सुनना बहुत कठिन है, उनके पास बैठना बहुत कठिन है। अगर किसी का दिमाग कोई चेंज कर सकता है, अगर भ्रष्टाचार की लोगों को जेल भेजने का काम कोई कर सकता है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी। इसलिए मुझे कहा कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता, मैं 2 मिनट ज्यादा बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now I will call upon Narendra Navre to come and have a gift presented to you, and then it will be followed by Dr. Swami's lecture. प्राची की चंचल किरणों से, पूरब की चंचल किरणों से आया स्वर्ण विहार। क्या था है आज सोया अभिमान, ऊपर हिम से ढकी हुई है ये पर्वत मालाएं, सुलग रही है भीतर भीतर प्रलयंकर ज्वालाएं। उन लपटों में दिख रहा है भारत का उत्थान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। जाग उठी है वानर सेना
चला सभी को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी, दानव की लंका पर फिर से होना है अभियान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा, दूर हुआ अज्ञान पार्थ का धनुष बाण फिर जागा, पांचजन्य ने आज सुनाया संस्कृति का जयगान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में जागे सोए वीर, युद्ध स्थल में सज्जित होकर चले आज रणधीर, आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों से आया स्वर्ण विहान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। धन्यवाद नवरे जी, बहुत ही अच्छा उनका राग है और अच्छे से गीत भी बनाते हैं। हमारे बीच में इस एरिया के नगर सेवक, इस क्षेत्र के नगर सेवक प्रकाश गंगाधरी जी उपस्थित हुए, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ जिगर चड्डे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत करते हैं। सुनील टुकड़े यहाँ के सेक्रेटरी, उनका भी स्वागत करते हैं। स्वामी जी का स्वागत प्रकाश गंगाधरी और जिगर चड्डे और उनकी वार्ड मीटिंग कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गंगाधरी जी, आप इस वार्ड के नगर सेवक हैं। जिगर चंदे यहाँ के अध्यक्ष हैं, सुनील टोपरे यहाँ के महामंत्री हैं। हमारे बीच में श्री नागराजन जी उपस्थित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ में कल्पनाबेन कंधारिया उपस्थित हुए हैं, महिला आघाड़ी की प्रमुख है। श्री राकेश जोशी ब्राह्मण सोशल ग्रुप के फाउंडर मेंबर है, ब्राह्मण समाज के भी फाउंडर मेंबर है, और श्री ललित भाई भी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Now it's over to Dr. Swami. हिंदी में बोलो तो किसी को आपत्ति नहीं है। मद्रासी हिंदी बोलेगा तो देश के लिए अच्छा ही है। मित्रों, पहले तो मैं जगदीश शेट्टी और उनके जो साथी हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि ये हमारी अपेक्षा के पार एक सफल पीटी की कॉन्फ्रेंस आज हुई है। ये कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ये है कि हमने ये सोचा कि 1947 के बाद धीरे धीरे
जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने किया था, उसके विपरीत हमारे देश में हो रही है राजनीति में। वो ये है कि महात्मा गांधी ने पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, उनको अपने स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा था और ये हस्ती के बनकर खड़े हुए। और जब वो उन्होंने जोड़ा था, उस समय हम लोग के देश में जो प्रवृत्ति थी कि हम अंग्रेज के बिना इस देश को चला नहीं सकते। हमें तो ऐसी गलत इतिहास सिखाई गई थी कि ये हिंदुस्तान कभी एक देश नहीं था, अंग्रेजों ने आकर इस देश को बनाया। और महात्मा गांधी, उनके पहले भी लोग थे, तिलक थे, नानाजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, पर तो उन्होंने एक एक जिला स्तर पर भी महात्मा गांधी ने आह्वान करके लोगों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर जोड़ा था। और 1947 के बाद धीरे धीरे हवा बनाई गई कि इस राजनीति में सिर्फ चोर बदमाशों के लिए जगह है और शरीफ लोग जो हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जगह नहीं है, जो अपने आत्मसम्मान को ख्याल करते हैं उनके लिए जगह नहीं। और धीरे 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 क्रिमिनल्स भरने लगे, क्योंकि जगह आपने खाली कर दी तो ये आए। पहले तो क्रिमिनल्स पैसा देने लगे राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्रिमिनल ने सोचा कि इतना आसान है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम खुद लड़े। तो खुद क्रिमिनल्स जीतने लगे और पार्लियामेंट में आने लगे, असेंबली में आने लगे। तो इस मूवमेंट को रिवर्स कैसा की जा सकती है, इसको बदल, इस दिशा को कैसे बदल करके दोबारा हमारे देश में ज्ञानी पढ़े लिखे लोग जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, वो अपना पेशा छोड़ करके राजनीति में आ सके। अमेरिका में मैंने देखा है कि वहां जो बहुत कमा सकते हैं उन्होंने छोड़ करके राजनीति में आया। तो ओबामा है आजकल प्रेसिडेंट, या हार्वर्ड लॉ स्कूल में थे, क्लास के टॉप में थे, हार्वर्ड लॉ जर्नल के एडिटर भी बन गए थे, किसी कॉर्पोरेट का लॉयर बनते तो बिलियनर बन जाते। तो आए, इनके पहले बुश थे उनको हार्वर्ड से MBA मिला। तो इस प्रकार से राजनीति में अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, इन सब देशों में राजनीति में जाकर के राजनीति के जरिए एक स्वच्छ प्रशासन देना, ये एक मान्यता प्राप्त विषय है। और हमारे देश में हम बुराई तो करते रहते हैं, राजनीति सब चोर है, कुछ नहीं होता, सब पैसा खा रहे हैं, लेकिन हम खुद जा करके इसको बदलने के लिए तैयारी के लिए शुरुआत हम ये पीटी कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी मंशा क्लियर होनी चाहिए, आपकी चेतना जगी होनी चाहिए। उसके बिना देश को हम चला नहीं सकते, कितनी भी हमारी संख्या हो। मैंने कई बार अपने आप को भी और कई भाषणों में बताया कि 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है और एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के पास है और तो भागेगा बकरी, एक शेर उनको डरा देगा। तो इसीलिए संख्या पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से शक्ति भी हो, शस्त्र हो, पैसा हो, जब तक आपकी मंशा नहीं है आप उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आज मुझे कई लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ करके क्यों ये सोनिया गांधी के सामने ऐसा झुकता है। अब मैं उनको फिर याद दिलाता हूं कि सर्कस में 5 सिंह होंगे एक पिंजरे के अंदर, एक दुबला पतला रिंग मास्टर जाएगा अंदर, फिर उसको हुक्म उन शेर और सिंहों को हुक्म देगा ऊपर चढ़ो, सब मेज पर चढ़ेंगे,
मुंह खोलने बोलेगा, सब मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन रखेगा एक एक के मुंह में, सब ताली बजाएंगे। ये एक एक सिंह इसका चिकना चूर कर सकते हैं, इसका गला काट दे सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसका जान ले सकते हैं, और तो सिंह आज्ञा मानता है। तो मनमोहन सिंह का भी ऐसे ही बचपन से तैयारी है कि वो आज्ञा मानने की उनका आदत है। वो भी सर्कस सिंह जैसा ही सिंह है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इसीलिए मंशा को तैयार करने के लिए अपना सही इतिहास क्या है, हमारे देश की क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं इमरजेंसी लड़ रहा था, सबने कहा कि तुम फालतू लड़ रहे हो, आर्मी में जाके बसो, परिवार को ले जाओ। यहाँ तो हम गरीब देश हैं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी होता ही नहीं है। कौन सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी है? लोग अपना पेट भरने के लिए सोच रहे हैं, काम मूलभूत अधिकार का सोचेंगे। इस प्रकार से मुझे निराश करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया। हम तो जल्दी निराश नहीं होते, क्योंकि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं। तो निराश तभी होगा तो दूसरे की बात सुनो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लड़ते रहूंगा, कुछ भी हो। नहीं, क्या 20 साल लड़ोगे? क्या 20 साल लड़ेंगे? लेकिन हुआ क्या, इमरजेंसी के 20 महीने के बाद इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी। उस इलेक्शन में हम सब लोग, हमारे सारे लोग, ज्यादातर लोग जेल में थे। हाँ, हमें धन्यवाद देना चाहिए माधवराव फुले को, मोहम्मद पिंगले ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए उन्होंने भूमिगत जाल बिछाई थी, और इसीलिए उस जाल के आधार पर ये जो 5 पार्टी इकट्ठे होकर के जनता पार्टी बनाई, उन्होंने चुनाव लड़ी। हमारे पास पैसा नहीं था, मैं खुद यहाँ इसी क्षेत्र से लड़ा था। मैं जब यहाँ मीटिंग में जाता था, भीड़ में होती थी, तो बाद में भीड़ से निकलने के बाद मैं पॉकेट देखता था, पॉकेट में पैसा भरा होता था। लोग पैसा ऐसा डाल देते थे, इतनी उत्साह थी, ये कोई अपेक्षा नहीं कर सकता था। रांची में इंदिरा गांधी खुद हार गई चुनाव में, और किसने हराया? किसने हराया? रायबरेली के अनपढ़ लोगों ने हराया। मुझे लोगों ने कहा ये डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हमारे देश में इतनी गरीबी है, कौन डेमोक्रेसी की बड़ी चिंता करेगा? चुनाव में तो इंदिरा गांधी रिश्वत दे देगी, कहेगी मैं ये दूंगी वो दूंगी, और लोग वोट दे देंगे। लेकिन मैंने क्या देखा है चुनाव के परिणाम में, दक्षिण भारत जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और जो उत्तर भारत में अनपढ़ लोग थे उन्होंने कांग्रेस को पूरा हरा दिया। तो डेमोक्रेसी आई तो ये अनपढ़ लोगों के कारण आई, हमारे पढ़े लिखे लोगों के कारण नहीं आई। और ये बात आज भी चल रही है। मुझे 2012 में तमिलनाडु के इलेक्शन में मैंने देखा, सब कहते थे करुणानिधि के पास 2G का खूब पैसा है, पैसा देगा वोटर को। उसने दिया भी, 6,000 रुपए एक एक वोट के लिए उसने 6,000 वोट दिया था। लेकिन लोगों ने पैसा भी दिया और उसके खिलाफ भी वोट देकर के दिया। तो एक आस्था होनी चाहिए हमारे देश की संस्कृति के बारे में। हम तो मामूली नहीं है। लोग इस देश को कहते हैं कि ये देश अंग्रेजों ने ये ठहराने को साथ बना के दिया हमें। वास्तव में देखोगे तो दुनिया में कई देश टूट गए। युगोस्लाविया का 4 टुकड़ा हो गया, इंडोनेशिया का 2 टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, बाकी है 4 टुकड़ा करने के लिए तो कहते हैं जब पाकिस्तान टूट गया था तो कह रहे थे कि नाम क्या होगा। एक का नाम बांग्लादेश, दूसरा का नाम जगन्नाथ जोशी, एक होते थे MP, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा इसका नाम अब पाकिस्तान कह देना चाहिए, जो बाकी है। और सोवियत यूनियन इतनी ताकतवर शक्ति, अमेरिका के बराबर वर्ल्ड पावर,
उसका 16 टुकड़ा हो गया है। और अब फिर पता लगा कि सोवियत यूनियन क्या है, अब पता लगता है कितनी गरीबी है उसमें, कितना प्रोपेगेंडा होता था सोवियत यूनियन में। मुझे ये समुद्री पार एक कम्युनिस्ट थे, मुझे वो चिढ़ाते थे, देखो सोवियत यूनियन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो आखिर में मैंने उनको बताया कि अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है। तो मैं आपसे पहली बात ये कह रहा हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं करते जाएंगे, क्योंकि हम एक नया तबका, एक नया पीढ़ी जिसकी चेतना एक विराट चेतना है, जो अपने सही इतिहास को जानता है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हम तो सब एक ही हैं। आजकल डीएनए टेस्ट के अनुसार तो हम सब एक ही हैं। मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक्स में तो छप गया हिंदू मुस्लिम का एक ही डीएनए, ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का भी एक ही डीएनए। और ये तो सिद्ध हो गया जब डॉक्टर अम्बेडकर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में, जब हमें जानवर समझते थे पश्चिम देशों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स, उसके पीएचडी थीसिस ने टॉप क्लास। बाद में गए लंदन में उन्होंने लॉ डिग्री ली और हिंदुस्तान में आए और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और अपना संविधान को तैयार करने में योगदान की। और हमारे खेत की बात है हमारे देश में कि लोगों ने इसकी भारत रत्न भी जनता सरकार नहीं दी थी, कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। सरदार पटेल को भी जब मैं मिनिस्टर था तब वो भारत रत्न मिली थी। सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, इनको कांग्रेस ने नहीं दी थी, कांग्रेस को भी सिर्फ नेहरू परिवार। और देखिए भीमराव वो कहते थे अम्बेडकर को सब भाषणों में, जिसने पीएचडी ली, जिसने इंग्लैंड में टॉप में लॉ डिग्री ली, और जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज में फेल हुए। उन दिनों में जो कॉलोनी से आते थे उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई थी, जेंटलमैन पास। तो जवाहरलाल नेहरू को जेंटलमैन पास मिली थी। 1947 के बाद उसको अबॉलिश कर दिया था जेंटलमैन पास। इसीलिए जब राजीव गांधी गए तो वो भी फेल हो गए, ये राहुल गांधी आ गए वो भी फेल हो गया। सोनिया गांधी गई नहीं थी फिर भी उसने कहा कि मुझे डिग्री है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस जवाहरलाल नेहरू जो जेंटलमैन पास लेकर आया, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिसने पीएचडी ली और बाद में टॉप डिग्री मानी, उसको भीमराव। उल्टा कहना चाहिए अम्बेडकर को कि वो है पंडित और जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश में ये सारा जो हमारी उलझन पैदा की गई हमारी अतीत के बारे, इसको ठीक करना है। और हमारे देश की जो एक जमाने में भूमिका थी, क्या भूमिका थी दुनिया के सबसे विकसित देशों में, जैसे अभी प्रोफेसर वैद्यनाथन ने कहा, वैद्यनाथन ने बताया कि 1000 साल पहले हमारी वर्ल्ड की जीडीपी में 50% हिस्सा था। दुनिया के लोग आते थे और यहां खरीदने के लिए आते थे, कोई बेचने के लिए नहीं आते थे। क्यों बेचने के लिए? कोई खरीदने के लिए स्टाइल नहीं। अमेरिका से 1636 में जब जहाज आते थे खाली आते थे और कांचीपुरम में उस बंदरगाह में रुकने के बाद वो सामान खरीदते थे, कपड़ा, मसाला, ये सारी चीजों को खरीद करके वापस जाते थे। एक बार राजा ने पूछा उनसे कि सब ठीक है ना? उन्होंने कहा सब ठीक है, एक बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, राजा ने कहा क्या बात ठीक नहीं है? और कहा कि आप खाली जहाज के साथ आते हैं और यहाँ भर के जाते हैं, आप कुछ हमसे खरीद लीजिए। तो हमारे लिए कुछ कसर होगी कि खाली जहाज नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या खरीद सकता हूँ अमेरिका में से, यहाँ तो सब कुछ मिलता है।
तो उन्होंने कहा नहीं कुछ सोचिए आप। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखा। ये गर्म तमिलनाडु में तो हॉटर एंड हॉटेस्ट सीजन होती है, हाँ वो 3 और तो वहाँ तो कोई बर्फ का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा राजा ने कि मैंने बर्फ कभी नहीं देखा, हिमालय में है और तो मुझे दूर जाना होगा। आपके देश में मैंने सुना कि बर्फ आसमान से गिरती है सर्दी में, तो आप बर्फ दीजिए, लाइए, मैं खरीद लूंगा। तो वहां अमेरिका में जो वहां तालाब थी एक बॉस्टन के पास, उसकी जो सर्दी में फ्रीज होने के बाद वो सॉडस्ट डाल करके उसको काटते थे, फिर उसको जहाज में रखकर हिंदुस्तान लाते थे। 4-4 महीने लगते थे जहाज के लिए, परंतु क्योंकि वो जहाज के जो लोअर पार्ट में थी वहां रखते थे और पूरा सॉडस्ट से कवर करके रखते थे, तो बच जाती थी और उसको आकर यहाँ बेचते थे। अब देखिए अमेरिका का एक्सपोर्ट शुरू में सिर्फ बर्फ था, हमसे वो सब खरीदते थे। आज कितना बदल गया है। आज हमें भ्रष्ट देश कहते हैं। 123 है हमारा नंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। परंतु जो वहां बाहर से आए हमारे देश में, जैसे पार्सियन चाइना से आए थे भिक्षु, AD 400 माने 1700 साल पहले, यानी 1650 साल पहले वो हमारे देश में आए। उन्होंने 11 साल रहे यहाँ, ग्रंथों को खरीदा उन्होंने, फिर उन्होंने पुस्तक लिखी अपने अनुभव के बारे में। वो कहते हैं कि इस देश में तो सब कुछ मिलता है, समृद्धशाली देश है, लेकिन इस देश की जो विशेषता है कि यहाँ के लोग इतने निष्कपट ईमानदार कि वहाँ आप उनके घर में जाके कोई गलती से सामान छोड़ देंगे तो आपके पीछा करके देता रख कर देते हैं। या रात कहते हैं कि यहाँ के लोग जब रात को घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, ताला नहीं लगाते घर में। ये मैंने कभी नहीं किसी जगह में देखा उन्होंने कहा। और यही बात दोबारा जॉन चौंग आए थे 700 साल के बाद, वो भी यही कहते थे। वास्को ड गामा आया पोर्चुगल, उसने भी यही लिखा है। तो हमारी देश की प्रतिष्ठा भी ये थी कि ईमानदार है और ये देश अमीर देश है। लेकिन आज दोनों में हम उल्टा हो गए। तो ये सब जानना चाहिए कि क्यों हमें आज इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति से कैसे उठ सकते हैं। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उस तक मैं चंद्रशेखर के राज्य में, मैंने जो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, मैंने इस देश में अर्थ प्रणाली में सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दी और तो हमारी गवर्नमेंट गिर गई। तो नरसिम्हा राव ने मुझे आमंत्रित किया उनकी सरकार में ज्वाइन करने के लिए। शर्त एक ही रखा कि कांग्रेस का मेंबर बनना चाहिए। मैंने कहा मैं कांग्रेस का कभी नहीं मेंबर बनूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा ये तो पार्टी नहीं है, ये तो एक परिवार का है, आप भी थोड़े दिन की मेहमान हैं, तुम्हें तो भगाने वाले हैं ये लोग, तो जब तक है मैं आपको मदद करूंगा। तो उसने फिर एक कमीशन बनाया गैट के लिए, उसमें कैबिनेट रैंक दिया। मैं पार्टी का कोई सहयोगी नहीं था, मैं कोई आला ही नहीं था, मैं कोई गठबंधन भी नहीं था, फिर भी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए उसमें उनको ब्लूप्रिंट देकर उनको बताऊं क्या सारा कुछ किया उन्होंने। उनके हुक्म पर मनमोहन सिंह ने ये सारा क्रियान्वित किया। परंतु मीडिया के कारण सोनिया गांधी भी नफरत करती थी नरसिम्हा राव से। क्यों? क्योंकि जब वो सोचते थे कि राजीव गांधी हत्या होने के बाद एक सहानुभूति लहर चलेगी और उनको मेजॉरिटी मिलेगी। परंतु हम लोग, मैं उसके समय लॉ मिनिस्टर था, मैंने चुनाव के लिए 4 हिस्से में चुनाव करा दी थी क्योंकि हमारे पास पुलिस नहीं थी। तो इस 3 हिस्से के बाद ही राजीव गांधी की हत्या हुई। तो एक ही हिस्से में उनको पूर्ण सफलता मिली ये सहानुभूति में, तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। प्लान था सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के,
लेकिन परिवार ने सोचा ये तो अनुभवहीन है और मेजॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट चला नहीं सकेगी, तो हम थोड़े दिन में क्वार्टर इन्होंने सलाह दी कि हम पार्टी को तोड़ेंगे, दूसरे पार्टी को तोड़ करके मेजॉरिटी बना देंगे। उसके बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस तक कोई बीमार, बुढ़ा, मरने वाला कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना। तो उन्होंने नरसिम्हा राव का 4 हार्ट अटैक हो गई थी, बड़ा बिस्तर में लेटा हुआ था, उसको बना दी। अब वो बनने के बाद उनकी स्वास्थ्य सुधरने लग गई। ये सब चिढ़ गए क्योंकि ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पार्टी की अध्यक्षता भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसीलिए नरसिम्हा राव की बुराई करते रहे, उनको क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया और आखिर में नरसिम्हा राव को चुनाव कराया। और परंतु क्या हुआ कि जब सोवियत मॉडल थी हमारे देश में, उस समय हमारी ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा नहीं था। नरसिम्हा राव ने इसको 5 साल के अंदर 8% तक ले गए। उसके बाद देवगौड़ा आए। देवगौड़ा को तो सब कहते हैं नेल्सन मंडेला। क्यों? क्योंकि कन्नड़ में नेल माने खेती। ये कहता मैं फार्मर का बेटा, तो नेल्सन। मंडे माने दिमाग, इल्ला माने नहीं है। उसकी सरकार आई, रिफॉर्म नहीं किया, कम्युनिस्ट उसके मेंबर्स थे, फिर गुजरात की आई, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो जब ये सरकार आई तो ग्रोथ रेट कम हो गई 4%, और उसको फिर उठाते उठाते 2003 में, ये 2003-04 में उन्होंने 8.5% तक ले गए। इसीलिए जल्दी चुनाव कर दी कि भाई हमने ग्रोथ को किया है। लेकिन चुनाव में पता नहीं किस कारण से हारे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हारे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सारा देश में उपयोग किया गया था। लेकिन हारने के बाद जो मोमेंटम बनाई थी इंडिया गवर्नमेंट, वो थोड़ी दिन साल चली, 2008 के बाद ढली, और आज तो हमारी परिस्थिति ऐसा खराब है कि इस परिस्थिति से उठाने के लिए एक नया मजबूत निर्णायक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। भगवान के सब आशीर्वाद से आज एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है। वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात की मॉडल के बारे में सब उसके बारे में बोलते हैं, और गुजरात का मॉडल क्या है? उनका मूल बात यह थी कि यदि लोगों को कन्विंस कर दोगे कि मैं तुमसे पैसा लूंगा तो उसको आपकी भला के लिए खर्च करूंगा। किसानों से कहा कि जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी रेट में नहीं देने वाला, परंतु 18 घंटा कम से कम लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। किसान ने कहा मजदूर हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। तो उन्होंने सब्सिडी हटा दी और उनको फुल चार्ज दी, परंतु इलेक्ट्रिसिटी में पावर कट नहीं। एक कर किया उन्होंने तो सारा बदल गया लोग। सरदार सरोवर के लिए अब आपकी कैबिनेट यहाँ वो आई है जो तोड़फोड़ करने वाली है, क्या मेधा पाटकर। उसका पिताजी कन्नौज पर थे, वो हमारे कार्यकर्ता थे, हम तो उनको बहुत मानते थे। तो कभी ऐसा हो जाता है कि बाप का बेटी ठीक ही नहीं होता। लेकिन मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर नहीं होना चाहिए, उन्होंने कर दिया। आज जाकर कच्छ को देखें, जो रेगिस्तान था आज हरियाली है, एक्सपोर्ट करने वाला, रोड बना दी और ग्रोथ रेट 10% जा रही है। हिंदुस्तान 10%
5 साल के लिए चलेगी ना, प्रति वर्ष 10% ग्रोथ रेट, तो हम विकसित देश बन जाएंगे, चाइना को ओवरटेक कर सकेंगे। ये हमारी बात है। उसके लिए क्या करना है? अब प्रोफेसर वैद्यनाथन वो कई ऐसी बातें कहती हैं जो बहुत गंभीर बातें, परंतु इस रोमांचक तरीके से कहते हैं कि सब लोग हंस करके कभी इसको ध्यान में नहीं रखते, वो जोक पर ज्यादा देख लेते हैं। उन्होंने बहुत ठीक बात कही कि सबसे मुख्य है रेट ऑफ सेविंग्स, और हमारे लगभग जो पूंजी होती है हमारे देश में, उसमें विदेशी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ज्यादातर हमारे देश की सेविंग्स, लेकिन पिछले 5 साल में सेविंग्स कम होते जा रही है। तो सेविंग्स को उठाना है और उसको उठा करके दोबारा 35% तक लाना है, और उसके साथ 3-4% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए, तो 38% की इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ रेट 10% हो जाएगा। 10% 5 साल के लिए रखोगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश की पूरी विकास हो जाएगी। क्या हम उठा सकते हैं? हाँ, उठा सकते हैं। लोग को प्रोत्साहित करिए। अभी नितिन गडकरी की कमेटी है इकोनॉमिक विजन, उसने एक सब कमेटी बनाई है इकोनॉमिक विजन, उसमें मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाई है। मैंने कहा कि ऐसा कदम उठाएं आते ही सरकार में, जिससे लोग उत्साहित हो जाए, और ये खास तौर पर ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम लोग के महिला, जिन्होंने कहा प्रोफेसर वैद्यनाथन ने, मध्यम वर्ग के लोगों को उत्साहित करें कि वो पैसा बचाएं। अब वो कौन सा ऐसा कदम है जो सीधा तुरंत जिसका असर दिखेगा? ये नहीं कि आज पूंजी गाड़ेंगे फिर आस्ते 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 वो आएगा और इन्हें 5 साल के बाद आपको मिलेगा जेस्टेशन लैग के नाम पर। तो मैंने ये सुझाया है कि आप इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। तो लोगों को शौक हुआ, पहले तो सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से तंग आए, अब कई ऐसे भी हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो रिजाइन करके पार्टी भी बना लेते हैं, इससे भी आजकल अपना आने लगे। तो ये इनकम टैक्स का काम है, आपको कागज में कागज मांगते रहे, तंग करते रहे, रिश्वत ले, और इसलिए लोग समझते हैं कि हम क्यों अपनी आमदनी दिखाएं, उसको बचाएं, यानी उसको ब्लैक मनी में करते हैं, ब्लैक मनी को विदेश में बेच दें, तो हमारे देश में जो पूंजी होनी चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से रेवेन्यू कहां से आएगा? कितना रेवेन्यू खत्म हो जाएगा? 2 लाख करोड़ रुपए। क्या ये 2 लाख करोड़ रुपए दूसरे रास्ते से हम नहीं पा सकते? मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए मैं इनकम टैक्स अबॉलिश करता हूं, 2 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए, लेकिन बचत तो बढ़ गई, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गई। रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गई तो सामान जो उत्पादन हो रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ गई तो इसके माने कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स से भी आपको रेवेन्यू बढ़ जाएगी, और हमारी कैलकुलेशन के अनुसार वो 2 लाख से ज्यादा होगा। और वो छोड़िए, वो तो एक समझाने की बात हो गई। मैं तो प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूं कि आपको आमदनी चाहिए 2 लाख का, स्पेक्ट्रम का ऑप्शन कर दो। अभी स्पेक्ट्रम का 1/10 की हिस्सा की ऑप्शन हुई है, कितना मिला है? 61,000 करोड़। ये कपिल सिब्बल कहता था 0 है, बेचारा उसको 0 से आगे गिनना आता नहीं है। और यदि सीएजी की रिपोर्ट में जाओगे तो 1,76,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकता है ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि 2008 में उन्होंने
स्पेक्ट्रम बेचा 2001 के दाम पर। जब एनडीए गवर्नमेंट ने ऑक्शन की थी तो तब पता लगा कि 1680 करोड़ फॉर 4 मेगाहर्ट्ज मार्केट प्राइस है। उसी मार्केट प्राइस में 2008 में उन्होंने फिक्स किया। इस 2008 का जो फिक्स करने क्यों फिक्स किया? बाकी नहीं हमारा टैरिफ रेट्स को बढ़ाना नहीं है, उसको कम रखना है, इसीलिए हम सस्ते दाम पर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जिनको आपने लाइसेंस दिया उनमें से 2 कंपनीज थे, वो टेलीकॉम कंपनीज भी नहीं थे, वो रियल एस्टेट कंपनीज थे। स्वान टेलीकॉम शाही बंगाल का और दूसरा है यूनिटेक। ये दोनों लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, उनको दे दिया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विदेशी कंपनी स्वान ने एटिसलाट अबू धाबी का और ये यूनिटेक ने नॉर्वे का टेलीकॉम, उनको बेच दिया। किस दाम पर बेचा? 8 गुना दाम पर। तो यदि सरकार खुद नीलाम करती उस समय तो सरकार को 10 गुना ज्यादा मिलती है। और 10 गुना माने आपको जैसे सीएजी ने कहा 1,76,000 से कम नहीं होती। मेरी जो कैलकुलेशन है वो है कि 2 लाख से ज्यादा करती है। अब ये 61,000 10% में मिल गई तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी। अब हर साल हम ऑप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। और 2G सिर्फ नहीं है, 3G भी आ गया, 4G भी आ गया। 4G को भी मुफ्त में दिया है, इसका भी हम करना है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया है। मैंने फाइल किया था, ये राष्ट्र हित में नहीं है, इनको कैंसिल कर दो। सबने कहा ये क्या स्वामी बोल रहे हैं, इसको ये वकील नहीं है तो इसलिए ये कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कभी हो सकता है ऐसा, और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सारे 122 लाइसेंस को एक साथ कैंसिल कर दिया। 3G के ऑप्शन करोगे तो 4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, 4G के ऑप्शन करोगे तो 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कोयला का जो है उसका तो भी केस चल रही है, उसका भी कैंसिल हो जाएगा। होने के बाद उसको ऑप्शन करो और आपको 11 लाख करोड़ मिलेगा। ये जो गैस और ये इसका जो जमीन दे रहे हैं ना अंबानी, उसको भी नीलाम करो तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। और विदेश से जो हमारे लोगों का खाता है वहां बैंक अकाउंट, 70 देश हैं जहां सीक्रेट बैंकिंग होती है। वहां इन देशों में जो अकाउंट है उसमें टोटल अमाउंट 120 लाख करोड़ रुपए है। रामदेव कहते हैं इसको वापस लाओ। उनको तो पूरा आस्था है कि प्रोफेसर भाई जनार्दन रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने पाली नारीवन से पूछा कि कोई रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि रास्ता तो है, क्योंकि 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने एक एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी देश ये समझे कि अपने कोई नागरिक नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से बैंक अकाउंट विदेशों में, इन 70 देशों में खोला है, तो वो देश ये एक अध्यादेश या पार्लियामेंट से एक सत्ता, एक स्टैट्यूट बना दे कि जो भी हिंदुस्तानी उसका जो नाजायज अकाउंट विदेशों में, इन 70 देशों में है, वो हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और हर सरकार को फिर
कटिबद्ध होते हैं कि ये सारा पैसा भारत सरकार को दे दें। और यदि कोई कहे कि भाई मैंने तो जायज रूप से न्यायपूर्ण रास्ते से मैंने बैंक अकाउंट खोली है, सारा पैसा मेरा कमाल का पैसा है, मैंने रिजर्व बैंक को भी अवगत कराया है, तो ऐसे अकाउंट को हम वापस कर सकते हैं। तो मैंने नारीमन से पूछा कि फिर ये सरकार क्यों नहीं करती है, थोड़ा लोकप्रियता की बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा वो कैसे कर सकते हैं जब उनका ही खाता वहां खुला हो रहा है। सही बात है, ये नहीं करेंगे। सोनिया गांधी के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए, और ये जब आई हिंदुस्तान में इसके बाद कुछ पैसा नहीं था। कैसा हो सकता है? ये जो नौकरी कर रही थी उसमें तो ज्यादा कमियां नहीं हो सकती। मैं कमल साहब को पूछता हूँ कि कहाँ नौकरी कर रही थी 1963 से 68, रुपया बता दीजिए। तो मैंने कहा मैं उतना ही पूछ रहा हूँ, बायोडेटा में होता है कि कहाँ आपने काम किया है, ये बताने के लिए क्या है। अब बायोडेटा में उसने कह दिया कि मैं 63 से 68 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर इंग्लिश में डिग्री ली। मैं वहां लेक्चर के लिए गया, वहां लोगों से पूछा कैसे स्टूडेंट थी, वो कहता यहाँ स्टूडेंट ही नहीं थी। तो मैंने कहा लिख कर दोगे? उन्होंने लिख कर दिया, मैंने स्पीकर को दिया। उस समय मनोज जोशी थे, मैंने कहा इससे पूछो, इसने तो उम्मीदवार बनते समय एफिडेविट दिया है और पार्लियामेंट का हुजूर में भी ये लिखा है। तो उन्होंने चिट्ठी मेरा भेजा, जवाब आई कि ये टाइपिंग मिस्टेक था। तो मनोज जोशी ने कहा क्या करे? ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? एक कॉमा फुल स्टॉप का टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? तो ये पूरा सेंटेंस गॉट अ डिग्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन इंग्लिश, ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? तो मनोज जोशी ने क्या कहे? मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक। और बेटा ने भी झूठ बोला है, तो लगता है परिवार में झूठ बोलना आदत हो गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है। अर्णब गोस्वामी को कहा मेरे पास सर्टिफिकेट देखना तो मैं स्वामी को दिखा सकता हूँ। मैंने चिट्ठी लिखा, दिखा दो, अभी तक नहीं जवाब आया। और जो सर्टिफिकेट उसको मिली, उस सर्टिफिकेट में इतना ये कि यहाँ आए थे और उन्होंने क्लास अटेंड की थी और जो 4 एग्जाम ली थी उसमें इकोनॉमिक्स में फेल हो गए, इसीलिए उनको डिग्री नहीं मिली। तो ये सर्टिफिकेट दिखा नहीं सकते। अब इतना धोखेबाज लोग हमारे देश में है, तो कैसा हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी? मैं तो कहता हूं कि इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, साधन जितना चाहिए मिल सकती है, टैक्स डाले बिना। उत्पादन हर क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि कृषि में हम 12 महीने कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने नहीं कर सकते, वहां बर्फ गिरती है। आप यूरोप में भी नहीं कर सकते, पर हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। फिर भी 25% जमीन छोड़कर बाकी सब में एक ही फसल बोते हैं। मैंने कई बार आपको कहा है कि हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, औसत पे कितना दूध देते हैं? 200 लीटर। इजराइल में खूब खिला पिला करके जो गाय है वो कितना दूध देती है? एक गाय 11,000 लीटर। 200 लीटर 11,000 लीटर। मान लीजिए हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर दूध देंगे, तो फिर आपको सुबह दूध में स्नान करने के लिए मौका मिलेगा। और ये जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये दूध का दाम यूरोप में 10 गुना है। तो किसानों के लिए पैस्चराइजिंग, पैकेजिंग, छोटा सा एयरपोर्ट जिससे बॉम्बे कनेक्ट हो सकती है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप मौका दीजिए।
हमारे किसान अमीर हो जाएंगे इसी में। अनाज का दाम साउथ अफ्रीका में 7 गुना है, माने चावल का। जापान में भी 7 गुना है। हमारी चीनी सबसे सस्ता है। इन सारी चीजों के लिए एक्सपोर्ट के लिए व्यवस्था कर दें और हमारी एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस कर दें, तो किसी सब्सिडी की देने की जरूरत नहीं होती। हमारे किसान इतने ही अमीर हो जाएंगे। यही करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं क्यों कहता हूं, इस पर जोर लगा रहा हूं, गुजरात में हमने देख लिया कि थोड़ा सा दे दे किसान बातचीत कर लेता है। अंग्रेजों ने 1857 में जब देखा किसानों ने साथ दिया है रानी झांसी से के साथ और ये पेशवाजों को, तब उन्होंने कहा इनका कमर तोड़ना है। उन्होंने देश के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके उनको जमींदार बना दिया। कहा कि हमें हर साल इतना पैसा मिलनी चाहिए प्रशासन चलाने के लिए, जितना आप कलेक्ट करते हो उसमें कोई बंधन नहीं, आप जितना चाहिए कर सकते हो, और कोई दे नहीं सकता तो उसके भाई से ले लो, और वो भाई भी नहीं कर सकता तो इसकी बीबी चोरी कर लो। ये पूरा छूट दिया था इन जमींदारों को। और उन्होंने चूसते चूसते जब सत्ता 1947 हुई, हमारी कृषि बिल्कुल गरीब हो गई। उसको फिर छाने की नहीं जरूरत थी, पर वो सोवियत मॉडल आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना चाहिए, और तो उसके लिए पहले एग्रीकल्चर को तैयार किया। यही सरदार पटेल ने कहा, यही महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी की बात सुनने वाला नहीं था। ये दोनों का भी, महात्मा गांधी की हत्या हो गई और सरदार पटेल मर गए, तो ये सर्वसर्व बन गए, किसी की सुनता नहीं था। कभी कभी एडविना माउंटबेटन का सुनता था। और इसीलिए कश्मीर को ले गए यूएन में, सिरदर्द बन गए। अरे कश्मीर को यूएन लेने की क्या जरूरत है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर दस्तखत किया राजा, उसके बाद उसमें लिखा है, यानी कितने थे, लगभग 600 राजाएं थे, उसमें हमारे 450 से ज्यादा राजाएं सरदार पटेल ने साम दाम भेद दंड करके हमारे देश की हिस्सा बनाए। बाकी जो थे 150 वो पाकिस्तान के साथ चले गए। और सब में एक ही बात थी कि उस डॉक्यूमेंट में, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, कि जनमत लेने की जरूरत नहीं, राजा का दस्तखत फाइनल है, और एक बात करने के बाद दोबारा पुनर्विचार नहीं हो सकता। तो कश्मीर तो हमारा पूरा हिस्सा है। उसका ये सारा जो झंझट बनी, ये जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाकर ले गए और फिर 370 में लगा दी। अब कश्मीर में हम तो चाहते हैं कि माहौल ऐसे बने कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अनुपात में रहें, पर तो ये टेररिस्ट ने तो 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया वहां से। ये तो 370 के खिलाफ है। 370 में बनी कि यहां से कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां का जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है उसको बदलना नहीं है, लेकिन उन्होंने बदल दिया टेररिस्ट ने। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भेज दिया। तो क्या करना चाहिए? कश्मीरी पंडितों को वापस तो नहीं भेज सकते हैं, उनका मारकाट हो जाएगा। तो मैंने ये सुझाया कि इन्होंने 5 लाख भगा दिया, हम 10 लाख एक सर्विसमैन को कश्मीर में भेजकर जाकर बसने के लिए। मैंने जनरल वीके सिंह से पूछा है, कर सकते हैं? उनका बिल्कुल, 10 लाख क्या, मैं 20 लाख दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि अपना साथ सब एक साथ रहे, लेकिन जब आपने भगा दिया, अब अभी जब नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में मेरे ख्याल में भाषण में कहा कि हिंदू बांग्लादेश से आएगा तो हम उनको यहाँ रहने देंगे, और मुसलमान आएगा तो हम सब गए कम्युनल भाषण दे रहे हैं। पर इतिहास क्या कहते हैं? इतिहास कहती है कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान बनाया जाएगा। यही अंग्रेजों ने किया। पाकिस्तान बनने की औचित्य क्या है?
कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता है उसके लिए एक अलग देश बनानी चाहिए। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनी, जिसका दो टुकड़ा होकर एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। तो वहां पे मुसलमान अपना अलग देश लेने के बाद दोबारा ही हमारे देश में आएगी, तो फिर दो काम होने चाहिए, या उनको वापस भेज देना चाहिए या बांग्लादेश को कहना चाहिए कि आपका 1/3 हिस्सा जनसंख्या हमारे देश में आ गई, तो इसीलिए 1/3 हिस्सा जमीन हमें वापस कर दीजिए। हमने तो ये दिया था इसको। और अब मैप में देखोगे तो खुलना से सिलेक्ट में एक मस्जिद खींच दो और दोनों तरफ से सेना को भेज के तो सारा जो ऊपर का एरिया है 1/3 बनता है। यदि ये भाषा में बोलोगे तो बांग्लादेश सबको वापस ले लेगा। ये सरदार पटेल ने कलकत्ता में भाषण में कहा कि हिंदू की मारकाट को रोक नहीं सकते हो, तो फिर मैं आकर आपके लिए रोक कर दिखाऊंगा। उसके बाद रुक गया। 32% थे हिंदू, आज 7%। चुनाव में हार गई बीएनपी पार्टी, तो उन्होंने पहला करके हिंदुओं की मला में जाकर उनकी व्याख्या की, जिसके कोई नहीं बोलता। मैं नहीं पक्ष में हूं कि हमारे देश में किसी धर्म के साथ अन्याय हो। कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको बराबर है, उसमें इधर उधर की बात है, जिसके लिए हमें मुसलमानों के साथ बैठ करके फैसला करनी चाहिए। मैं सऊदी अरेबिया का प्रेसिडेंट के साथ एक दिन लंच किया, उन्हें मुझे आमंत्रण भी दिया, पर तो टाइम नहीं है जाने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि खबर आई है कि मक्का में आपने जिस मस्जिद में मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उसको तोड़ दिया। मैंने हाँ। मैंने कहा ये कैसा तोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा कि मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है, वो बिल्डिंग है। मस्जिद तो हम तोड़ते रहते हैं सड़क बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में भी तोड़ सकते हैं? नहीं, आप प्रेम से करना, जबरदस्ती से। मैं समझता हूँ कि अपनी सरकार बनेगी तो हम मुसलमान की समुदाय के साथ बैठ करके करेंगे। हमें तो 3 ही जगह चाहिए, अयोध्या, काशी विश्वनाथ और वृंदावन। और मुसलमान मान लें, भाईचारा हो जाएगा। मैं तो उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को समझना चाहिए कि इतिहास क्या कहते हैं। और ये मैं आज सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1994 में यही बात कही है कि मंदिर जो होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, इसीलिए भगवान चले जाता है उसमें, इसीलिए मंदिर सदा के लिए मंदिर है। लेकिन मस्जिद जो है वो धार्मिक स्थान नहीं है, वो नमाज पढ़ने के लिए जगह है, यहां से उधर कर सकते हैं। तो पर तो मुसलमान की सहायता किसे करने पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये लोकतंत्र देश है, तो इसमें बातचीत करके कर सकते हैं। मुसलमान खुद कहता है कि राम इमाम हिंद है, तो मर्यादा देता है, तो किस तरीके से उनमें विश्वास पैदा करें कि हम उनके हक के लिए हक के छीनने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हुई है उसमें ये 3 हमारे लिए बहुत सबसे पवित्र स्थान है, इसको वापस। तो मैं आपसे कहता हूं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए रास्ता है, और हमारे देश में लोगों तक कोई कमी नहीं है। 70% हमारे लोग 35 साल से कम है, इनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुसलमान हो, हिंदू, सबके लिए टॉप क्लास एजुकेशन। आज तो सिर्फ 2% हमारी जीडीपी की खर्च हो रही है एजुकेशन, 6% होनी चाहिए। और आज इंटरनेट से आप दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाया जा सकता है आप सीधा प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
एक नया प्रोग्राम आया, इनका बेटा जो है आशीष शेट्टी, वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जहां इंटरनेट के जरिए आप दुनिया के क्लासरूम में साक्षी हो सकते हैं। हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है और MIT में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये EDX एक नया प्रोग्राम आया, उसके जरिए आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, एग्जाम भी ले सकते हैं, डिग्री भी पा सकते हैं वहां जाए बिना। तो हमारे देश को, नौजवान को तैयार करनी है, क्योंकि जहां मौका मिला वहां हिंदुस्तानी चमक रहा है। अभी माइक्रोसॉफ्ट में कौन बन गया, उसका नाम है नाडेला, सत्या, ऐसे बहुत हैं। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज की जो ग्रेडिंग होती है SCI, CMM 1 to 5 टॉप है, उसमें हमारे 35 कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी जो ग्रेड 5 का है। अमेरिका का कितना है? 15। चाइना का कितना है? 1। ऐसे ही हमारे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को फर्स्ट प्राइज जापान हर साल देती है। जहां कर सकते हैं हमारे लोग वो चमकते हैं, क्योंकि एक बार हम विकसित देश थे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज हमें नई सरकार बनाएंगे, परंतु इस सारा जो गड़बड़ी इन्होंने की है उसको ठीक करना है, और जिसने गड़बड़ी की है उनको भी पकड़ के अंदर करना है। सिर्फ इडली नहीं, पिज्जा का भी बंदोबस्त करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक सबक सबको सिखाना है, जितना भी आप पूछे, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो अंदर कर देंगे। ये अमेरिका में होता है, ये हमारे देश में होने लगेगा तो सब घबराएंगे, क्योंकि इनका ऐसा हो सकता तो हमारे क्या होगा। आज तो इंप्रेशन है बड़े लोगों का कुछ नहीं होता, तो इसलिए बड़े लोगों के शरण में रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हमें भ्रष्टाचार को मिटाने से, विदेशों में जो पैसा है वो आने से, टैक्स किसी के लिए भी एक्साइज टैक्स की जरूरत नहीं होगी, इतना पैसा होगा हमारे देश में। और इसी साथ हमारी देश की जो क्षमता है, कृषि की क्षमता है, जो हमारे लोगों की क्षमता है, योग्यता है, उनके लिए सही शिक्षा दे करके वो तैयार करनी है। लोग नए नए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे आज हमें अरब देशों से तेल लानी होती है, कल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जो टोयोटा गाड़ी 2015 से शुरू होने वाली है, टोयोटा गाड़ी, वो सिर्फ बैटरी जैसा है, रात को चार्ज कर दो, अगला दिन 350 किलोमीटर विदाउट चार्जिंग चला सकते हैं। या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आ जाए तो फिर विदेशों से हमें मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। थोरियम हमारे देश में 60% दुनिया के थोरियम हमारे देश में। यूरेनियम खत्म हो रही है, 2050 के बाद नहीं होगा। सारी दुनिया में आज थोरियम का रिसर्च चल रही है। होमी बाबा के कारण हमने रिसर्च पूरा कर दिया है, लेकिन ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में जो अमेरिका से संधि की, उस संधि के कारण ये रुक गया है रिसर्च को करके थोरियम रिएक्टर करने